Namaskar. Morning, good morning. Happy International Yoga Day to all of you. Rishiji, if I may take this opportunity to go back 15 years. 15 साल पहले, you had one of the satsangs in South Delhi, and I happened to attend it. So amongst a huge crowd, I was sitting somewhere in the corner and absolutely mesmerized. Or ab aaj, after 15 years, I am here sharing the stage with you. So apart from a lot of nervousness, there is a feeling of being feeling very special. तो मेरा ego है या पता नहीं क्या, but there is there are some moments when you feel कि खुद पर नाज हो रहा होता है. I don't know the English translation of that. And that's the emotion which I'm going through right now. To have the honor of introducing the rock star Rishi of our nation to everyone in Vistara and their families, and also to the Tata Group and many others who are joining us through various platforms. So, तो मुझे थोड़े से आप 2-3 minutes दे दीजिए. I will do the honor of doing the formal introduction, Rishi ji. और विस्तारा और टाटा फैमिली के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम और प्रणाम. Thank you. And so I know from, as I said, the rockstar Rishi, from bungee jumping to paragliding to a professional singer, a qualified chemical engineer, a very successful corporate career, finance partner in a software firm. I think the list is long, and I'm not sure if I'm going to be able to do justice to that. But you have been a very, very, popular as well as august presenter at various institutions and organizations like London School of Economics, Indian Institute of Technology, IIMS, and more than over 70 universities across the world. Your research paper has been published in the international journal Brain and Behavior. आपकी एक बुक है Celebrating Life, उसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे. We will talk about it as we move on. So with that, I hand it over to you. I would like to start with a small inquiry of mine, maybe today's day. What is the significance of yoga and breath in today's day and time? And I'm sure this question would get asked every now and then, and perhaps on every International Yoga Day now, 7th year of our celebration. But maybe each time there is a different resonance which we get when we hear it from you. Thank you. मैं शुरुआत करूंगा एक बेसिक ट्रुथ ऑफ लाइफ से. मैं कहता हूं जिस तरह से नेचर ने अपने आप को बनाया है, the way the nature has created itself and everything in it, जिसमें अलग अलग स्पीशीज का अपना एक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पटारा रखा हुआ है नेचर ने. उसमें if I refer to human beings, मैं कहता हूं nature has been extraordinarily gracious on humans. Humans के ऊपर उन्होंने जो strengths and weaknesses का जो एक pluses and minuses का जो एक ढांचा दिया है हमें, उसमें मैं कहता हूं ऐसी अद्भुत ताकतें रखी हुई हैं हर एक के अंदर. इन ताकतों को, इन इनर स्ट्रेंथ्स को अपने शास्त्रों में है ना सिद्धियां कहा है. आपने शायद ये शब्द सुना हो, सिद्धि कहते हैं इनको. और अलग अलग तरह की सिद्धियां हैं, जैसे किसी का मन जान लेने की सिद्धि है, या जिसको वाक सिद्धि कहते हैं, यानी अगर आपने कोई शब्द बोला वो पूरा होके रहेगा, वो समष्टि उसको मैनिफेस्ट करने के काम में लग जाती है. अच्छा, जैसे किसी के मन में जाके उनका मन बदल लेने की एक सिद्धि है. या आप ये देखोगे अगर जैसे हर व्यक्ति का इंडिविजुअल लाइफ देखो तो जैसे ये मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट फिनोमिनन है ना. जीवन ऐसे क्षणों का क्रम है. इट इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग रिवर ऑफ टाइम एंड स्पेस. वो स्पेस एंड टाइम का एक फैंटास्टिक एमालगमेशन है, इंटरैक्शन है. इस ऐसे लाइफ में आप देखोगे तो हर मोमेंट हर व्यक्ति के लिए
दो सेक्शंस वाला जीवन दिखेगा। एक तो बाहर की दुनिया है और दूसरी तुम्हारी अंदर की दुनिया है। बाहर की दुनिया अगर आप और गहराई से समझोगे तो 3 फैक्टर्स मेक द आउटर वर्ल्ड: पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से बाहर की दुनिया बनी है। अच्छा, अंदर की दुनिया 4 फैक्टर्स से बनी है, 4 एस्पेक्ट से बनी है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो, दे मेक योर इनर वर्ल्ड। अच्छा, बाहर की दुनिया आपकी अंदर की दुनिया पर इंफ्लुएंस करती है, वैसे ही आपकी अंदर की दुनिया आपकी बाहर की दुनिया पर भी इंफ्लुएंस करती है। आपकी अंदर की दुनिया में सुंदर भाव जगे हो, प्रेम जगा हो, आनंद जगा हो, सेलिब्रेशन जगा हो, तो आपके आसपास के लोगों पर भी उसका इफेक्ट होता है। अच्छा, किसी को आप मिलते हो तो उनके मन का आपके ऊपर इफेक्ट होगा, वैसे ही आपके मन का आपके आसपास के सिचुएशंस पर भी इफेक्ट होता है। जैसे वो एक मूवी आया था, आपने अगर सबने देखा हो, सीक्रेट नाम का एक मूवी था, और वो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करता हूं कि सबको देखना चाहिए। वो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि कहते हैं लॉज ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप अपनी चेतना में, अपने मन में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाली अंदर की दुनिया में आप जो भाव जगने दोगे ना, आपके आसपास के वातावरण पर उसी तरह का इफेक्ट होता है और उसी तरह की इवेंट्स आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहोगे। यानी आप अगर ये बिलीव करते हो कि जीवन बड़ा सुंदर है, तो समहाउ उस बिलीफ की वजह से आपके जीवन में सुंदरता लाने वाली ही घटनाएं घटती रहेंगी। अगर आप विक्टिमाइज्ड फील करते रहो, तो अंदर विक्टिम का भाव जगा है, वो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गड़बड़ हुई है, ये भाव अगर आप अपने मन में होल्ड करो, जितने समय के लिए होल्ड करो, तो उसी तरह की घटनाएं आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहोगे, ताकि आपका विक्टिम बना रहेगा अंदर। मेरा पॉइंट ये है कि अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, इन दो विभागों वाले जीवन में योग माने क्या है, मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूं कि बाहर की दुनिया के उतार चढ़ावों के बावजूद, जीवन रोलर कोस्टर राइड जैसा है, कभी उल्टा, कभी पुल्टा, कभी ऊपर, कभी नीचे। दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ। और वैसे इस डिजाइन में अंदर के इक्विलिब्रियम को बनाए रखने का जो स्किल है, अंदर की सुंदरता को बनाए रखने का जो स्किल है, उसको योग कहते हैं। और अलग अलग महापुरुषों ने अलग अपने अपने जो एक्सप्लोरेशंस थे जीवन के, उसको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है हमारे लिए। जैसे महर्षि पातंजलि जी ने योग सूत्र दिए हमें, या अष्टवक्र नाम के एक संत रहे, उन्होंने अष्टवक्र गीता दी हमें, या ऋषि वशिष्ठ नाम के एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट बीइंग रहे, तो उन्होंने हमें योग वशिष्ठ दिया। सो ऐसे जो अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने एक्सप्लोरेशंस का डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है हमारे रेफरेंस के लिए, ताकि हम इस जीवन को समझ सकें, अपने आप को समझ सकें। मैं उसको कहता हूं सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ए पार्ट ऑफ योग। उसमें इस योग को अगर देखो तो है ना, भगवान श्री कृष्ण ने 4 अलग अलग रूपों में उसका वर्णन किया। कहते हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। भक्ति योग माने क्या, तो ये जो एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग है, जनरेटर जी, ऑपरेटर ओ, डिस्ट्रॉयर डी, जीओडी गॉड कहते हैं उसको। ये जो जनरेट करने वाला, मेंटेन करने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला ये जो प्रेजेंस है, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्म चल रहा है, इस जीओडी गॉड को अपनी चेतना से एक रिकॉग्नाइज करते हुए, उसकी ताकत को पहचानते हुए उसको समर्पित रहना, मैं उसको भक्ति योग कहता हूं माय डियर। अच्छा, ज्ञान योग माने क्या है, तो अपने आप को भी समझना, इस समष्टि को समझना और उसके इंटरैक्शन को बखूबी सुंदरता से निभा लेना, ताकि इसी जीवन को और ब्यूटीफुली जिया जा सके और वर्थ बनाकर जिया जा सके, सार्थक बनाकर जिया जा सके। ये जो खेल है उसको मैं ज्ञान योग कहता हूं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट ज्ञान योग ऑफर्स यू। फिर तीसरा मैं कहता हूं ध्यान योग है। इस माया से मन को छुड़ा के अपने अंदर बैठो और तृप्त होकर आनंद के खजाने में डूबो। ये जो withdrawing your mind from the outer world and diving deep into the
reservoir of bliss within yourself is what ध्यान योग offers you. And the fourth one, आपके द्वारा किसी का कल्याण रेगुलर बेसिस पर होता रहे. ये याद रखिएगा, आपके द्वारा किसी का कल्याण हुआ, उनके कल्याण से जगे हुए पुण्य से आपका कल्याण होता है माय डियर. आपके द्वारा किसी के जीवन में सुख मिला, आनंद मिला, तो उनके मन में जो आपके लिए आशीर्वाद उठते हैं ना, वो आपके जीवन के आगे के दरवाजे खोलेंगे माय डियर. सो ये जो 4 योग बताए, इन चारों योगों का अगर आप टाइम ऑब्जर्व करो तो किसी भी समय में और जीवन, वो पृथ्वी के किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी देश में, इन चारों योगों का आज भी आपको रिलेवेंस दिखेगा. ये टाइम टेस्टेड ज्ञान है. तो इन 4 योगों का मैं स्मरण आज करा रहा हूं इंटरनेशनल डे ऑफ योग पर, कि भाई अपने जीवन को भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग, इन चारों योगों के कॉम्बिनेशन से अपना जीवन चला लेना, मैं इसको जीवन जीने की कला कहता हूं, आर्ट ऑफ लिविंग कहता हूं माय डियर. एंड यू नो, इतना प्रैक्टिकल वे है ये जीवन जीने का कि इन 4 योगों को, जैसे फॉर एग्जांपल भक्ति योग, यानी क्या, उस समष्टि का, वो जो डिवाइन एनर्जी से ये गेम चल रहा है जीवन का, उसका स्मरण भी रहे ना, आपको अंदर से ऐसी ताकत मिलती रहती है माय डियर. अच्छा, आप कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो और वो डिवाइन एनर्जी का स्मरण रहेगा तो आपको गड़बड़ करने से बचा लेगा माय डियर. ऐसा है ये खेल. इसीलिए भक्ति योग का महत्व है. फिर ज्ञान योग का क्या महत्व, आप ये देखिए, जिस सब्जेक्ट को आप जितना गहराई से जानने लगते हो, वो ज्ञान आपके चॉइसेस पर इफेक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट करता है. तो जितना गहराई से कॉन्शियसनेस को समझा आपने, अपने आप को समझा, तो उस समझ के आधार पर और सुंदरता से अपने आप को संभाल लिया, जीवन जी लिया. रोलर कोस्टर राइड में भी सेलिब्रेट करते करते जीवन जिए. ये ज्ञान योग है. और फिर ध्यान योग में मैं कहता हूं, ये जो इनएविटेबल ट्रुथ है जीवन का, इस माया में क्या रखा है. वो कहते हैं ना, वो एक बड़ा सुंदर गाना है, पास्ट में करीबन 40-50 साल पहले का गाना होगा. ये कह रहे हैं, गुरुदत्त जी का, मुझे मूवी याद नहीं, वो कह रहे हैं, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. सपोज तुमने बाहर की दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन अंदर अगर प्रसन्नता, आनंद बनाए नहीं रख पाए, तो इस बाहर की दुनिया का ज्यादा कोई महत्व है नहीं. इस सुंदर भाव को मैं इस ज्ञान योग, ध्यान योग वाले एस्पेक्ट में ट्रांसलेट करता हूं कि इस माया से मन को छुड़ाकर अंदर बैठकर आनंद के, मैं कहता हूं, फव्वारे बनना चाहिए. इस अंदर के आनंद के खजाने की चाबी ढूंढने के लिए ध्यान योग है. और फिर चौथा मैं कहता हूं कर्म योग. मैं कहता हूं आपके द्वारा, आप अगर गौर से देखोगे, जब आपका मन देने के मूड में होता है, किसी के लिए कुछ करने के मूड में होता है, आप देखोगे अंदर से ही प्रसन्नता बनी रहती है आपके अंदर. वही मन जब मांगने के मूड में जाए, डिमांड करने के मूड में जाए, एक्सपेक्टेशन करने के मूड में जाए, तो वो दुखी होने लगता है माय डियर. आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा. मैं कहता हूं कर्म योग माने क्या है, तुम मुझे क्या मिलेगा, इस भाव को त्याग कर मैं कैसे काम आ सकता हूं लोगों के, मैं कैसे किसी के लिए उपयोगी हो सकता हूं, ये भाव अपने मन में धारण करते हुए जीना, यही कर्म योग. ऐसे इन 4 योगों का सुंदर मिश्रण भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया था भगवत गीता के रूप में. आज आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेस के माध्यम से वही 4 योग ऐसे अलग स्वरूप में दुनिया को मिल रहे हैं, साधना, सत्संग और सेवा के रूप में. ऐसा है अद्भुत जीवन का. मैं इसको कहता हूं कि देखिए, बाहर की दुनिया के हम जो भी सक्सेसेस पाले, पैसा इकट्ठा हो गया, सुंदर घर बन गया, बच्चे हैं, सुंदर है सब कुछ, फिजिकल लेवल पर भी
काफी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। नाउ आप ये देखिए, जैसे ही ये शरीर छूटेगा, वो सब का सब जो भी इकट्ठा हुआ उसी क्षण खत्म, स्विच ऑफ। ऐसा डिजाइन है इस समष्टि का। तो ऐसे में मैं ये कहता हूं, आपने अपनी अंदर की दुनिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को कैसे बनाया है, कैसे समृद्ध किया है, वो आपके साथ जाने वाला है आगे। इसीलिए उसको साधना कहते हैं, ऐसा धन जो हमेशा के लिए आपके साथ जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूं आज के इंटरनेशनल डे ऑफ योग पर कि बाहर की समृद्धि के बारे में जितना प्रयत्न करना है, जितना एफर्ट करना है, जरूर से करना चाहिए। साथ साथ में पैरेलली अंदर की समृद्धि का भी सुंदर विचार और उसके लिए भी प्रयत्न एवरी डे अपने जीवन में होना चाहिए। तो सोने में सुहागा बनता है, तो कंप्लीट सक्सेस बनता है। अच्छा, जैसे जैसे आप इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, इनर एक्सप्लोरेशन में आप जितने गहरे जाते जाओगे, आई गारंटी यू एक बात आपको समझ में आने लगेगी। जो ऋषि वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ नाम के ग्रंथ में इतना सॉलिडली डॉक्यूमेंट करके हमारे लिए रखा है, और उसको पाने की वो तरीके भी बताते हैं उसमें। वो कह रहे हैं, हर जीव अपनी अपनी सृष्टि खुद बनाता है और खुद ही उसका अनुभव भी करता है। What he means is, for example, आप ये देखिएगा, जैसे आज मैं दीपा जी को देख रहा हूं। अब दीपा जी को इतने सारे लोग जानते होंगे, उनके आसपास के विस्तारा फैमिली के भी। हर व्यक्ति के लिए वही दीपा जी एकदम अलग अलग है कि नहीं? मेरे लिए दीपा का जो अनुभव है वो एकदम अलग। उनके घर के सपोज शादी हुई है, पति हैं, पति के लिए दीपा जी एकदम अलग होंगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिए दीपा जी एकदम अलग होंगी। उनके माता पिता के लिए दीपा जी एकदम अलग होंगी। मैं ये कह रहा हूं, हर जीव अपनी अपनी सृष्टि में जिन जिन लोगों का जिस तरह से अनुभव कर रहा है ना, उसमें उनके अपने माइंड का भी पोजीशन होगा ही, माय डियर। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थोड़ी गहरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, तुम अपनी रियलिटी को, अपने जीवन का जो वास्तविकता है, आपका जो रियलिटी है, आपका जो अस्तित्व है, उसको थोड़ा सा गौर से देख लो। उसमें कुछ गड़बड़ वाले, आप ही के जीवन को नुकसान करने वाले कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, बिलीव्स, राइट्स, रॉन्ग्स, कुछ ऐसे इमोशंस ऐसे कहीं इकट्ठा तो नहीं हो गए? मैं कहता हूं, सपोज किसी ने कुछ गड़बड़ किया और तुम्हें बहुत गुस्सा आया। अब उसकी तरफ से तो वो गड़बड़ आके निकल भी गई, सालों हो गए होंगे। अभी भी अगर आप गुस्सा पकड़ के बैठे हो अपने मन में, नाराजगी पकड़ के बैठे हो, हर्ट पकड़ के बैठे हो, मैं कहता हूं माय डियर, उसको तो पता भी नहीं होगा कि तुम हर्ट हो। तुम अपने ही जीवन का कबाड़ा कर रहे हो। मैं कहता हूं, कुदरत ने दी हुई एक फैंटास्टिक एबिलिटी है ह्यूमन माइंड की। तुम थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना माय डियर। सब लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? मुझे थोड़ा सा थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू माय डियर। अच्छा, मेरी बात सुनो। मैं जो सिद्धियों के बारे में बात करता, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करूंगा मैं आज। कुदरत की दी हुई 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज हमारे पास है। उसका उपयोग करने के लिए आज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। वो एबिलिटी हर एक के पास है। उसका उपयोग कैसे करना आपके जीवन में, मैं आज उसका इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। देखिए, मेरी बात सुनिए। ये जो मोमेंट बाय मोमेंट जीवन जा रहा है, मैं कहता हूं, आप अपने मन में जब जो भाव जगाना चाहो वो जगा सकते हो। ये एबिलिटी तो हर एक के पास है। अभी चलो, हम अभी बात कर रहे हैं, अभी मैं कहता हूं चलो उत्साह जगा के देखो। कम ऑन, इन्वोक एंथुसियाज्म इन योर कॉन्शियसनेस, तो उत्साह जगेगा। अभी जगा के देखो, जो सुन रहे हैं, दीपा जी उत्साह जगाइए। तो जगा। अच्छा, मैं कहता हूं प्रेम जगा के देखो। मैं ये नहीं कह रहा किसी को प्रेम करो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग इन्वोक लव इन योर कॉन्शियसनेस। लव विल गेट इन्वोक्ड। अभी देखो, प्रेम जगाओ तो प्रेम जगेगा।
अच्छा, जैसे ही प्रेम जगता है ना, सी व्हाट इट डज टू यू माय डियर। ऐसे मधुर कर देता है तुम्हें अंदर से, सॉफ्ट कर देता है, आपकी कॉन्शियसनेस मखमली होने लगेगी एकदम। ऐसी ब्यूटीफुल स्वीट मधुर चेतना लेकर कोई जी रहा हो, आसपास के लोगों पर भी उसका ऐसे ही असर होता है। सुन रहे हो मेरी बात? मैं कहता हूं तुम आक्रोश जगा के जियो, उससे अच्छा प्रेम जगा लो। तुम्हारा चॉइस है और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है माय डियर। आप सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारा चॉइस भी है और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अपनी चेतना में जो भाव जगते हैं, उन भावों में मैं कहता हूं, जैसे तुम अपनी चेतना में जो भाव जगाना चाहो जगा सकते हो, ये सिद्धि भी है तुम्हारे पास। दूसरी एक फैंटास्टिक सिद्धि है, कोई गड़बड़ वाला भाव जग गया हो, उसको तुम त्यागना चाहो, जब त्यागना चाहो त्याग सकते हो। यहां बैठे बैठे सपोज 2 साल पहले हुई गड़बड़ को लेकर अभी भी अगर आक्रोश है मन में, नाराजगी है, हर्ट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, राइट नाउ सिटिंग हियर, इफ यू वांट टू ड्रॉप इट, यू कैन यूज योर आउटगोइंग ब्रेथ एंड ड्रॉप ऑल दैट। मैं कहता हूं ऐसी 2 अद्भुत ताकतें बनाने वाले ने हर एक के मन में दी हुई है। यू आर capable of invoking any flavor at will, on demand, whenever and wherever you want. Second, you are capable of dropping any flavor at will, on demand, whenever and wherever you want. ऐसी अद्भुत चेतना लेकर जी रहा है हर व्यक्ति। इन 2 सिद्धियों को अपने जीवन में उतार पाना, अपने जीवन में उसका लाभ पाना, ये जो स्किल है, मैं उसको आर्ट ऑफ लिविंग कहता हूं माय डियर। जीवन जीने की कला है ये। अगर आपको ये स्किल सीखना हो तो आप सब लोग मिलके कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए। आई विल कम एंड ट्रेन ऑल ऑफ यू। मेरा तो तड़प ये है कि हर एक को ये पता लगना चाहिए कि तुम क्या चीज हो। Everybody should know all these fantastic siddhis that the nature has already bestowed on each one of us. इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेटिव करिकुलम को आप जितना एक्सप्लोर करना चाहो, treasures are waiting to get explored, I'm telling you. I think I have spoken enough. Deepa ji. Thank you. Abhi, aaj, so much is happening around us, and so the significance, you spoke beautifully about the 4 aspects of yoga. The other is about the science of breath. So pran or pranayam, uska kya mahatav hai? Abhi, I think each one of us has experienced it personally in the COVID era, but just want to hear more from you on its importance. अगर आप ये माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ना, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, उसका इंटर रिलेशन अगर आप देखोगे, यू विल बी रियली फ्लैबरगास्टेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अब पता लगने लगा लास्ट 40-50 साल में कि 99% रोग साइकोसोमैटिक है। इमोशंस में से, मन की स्थिति में से पैदा होने वाले फिजिकल रोग हैं, इसको साइकोसोमैटिक रोग कहते हैं। अच्छा, मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न मेडिसिन जो है, एलोपैथी वे ऑफ मेडिसिन, ये एकदम रिसेंट फॉर्मूलाज हैं। आयुर्वेद जो हजारों सालों से चला आ रहा एक टेक्निक है, उसमें इसका बहुत डिटेल में वर्णन है कि कौन से इमोशंस से कौन सा रोग होता है। ये मॉडर्न मेडिसिन को अभी तक पता नहीं लगा। अच्छा, मॉडर्न मेडिसिन के पास ये पता लग गया कि इमोशंस में से रोग पैदा होते हैं फिजिकली, लेकिन उसका जो क्योर है वो ना पता होने की वजह से उन्होंने, सॉरी टू से, लेकिन अज्ञानवश, रियली ब्लाइंडली उन्होंने ये बिलीव कर लिया है कि कुछ रोग जो हैं वो इनक्योरेबल हैं। आप अगर गूगल सर्च करोगे इनक्योरेबल डिसीजेस का,
यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। तो आपको ये प्रश्न उठेगा, अगर मॉडर्न मेडिसिन ये बोल रहा है कि ये रोग इनक्योरेबल हैं, तो उनके पास किस चीज का क्योर है? I think we have a connectivity issue there. We'll be just back soon. Add to stream कर. Am I audible now? Am I visible now? ये पता नहीं कैसे हो गया. अच्छा, now my point is, आपने कब तक ये सुना मुझे नहीं पता. मैं I will repeat a few things so that I'll come back to the same point again. मैं ये कह रहा हूं, एक लिस्ट बनाया गया so called incurable diseases का, बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन के पास उसका कोई निदान नहीं है, इलाज नहीं है. अच्छा, योग के पास, आयुर्वेद के पास इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है एंड उसका क्योर भी है, प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है. और उसके लिए हमारे ऋषियों ने वो जो अष्टांग योग दिया है, आपने शायद ये नाम सुने हो, राज योग भी कहते हैं उसको. उसमें 8 तरीके दिए गए हैं. कौन से 8 तरीके हैं? तो कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. जिनको इस सब्जेक्ट में रस आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, दे मस्ट गो एंड एक्सप्लोर दीज 8 लिम्स ऑफ योगा कहते हैं. अष्टांग योग है ये. तो उसमें यम माने, यम और नियम को उन्होंने इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है. वो कह रहे हैं इंडिविजुअल अनुशासन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन ऑफ ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड. पर्सनल लेवल का डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन ऑफ ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड. व्यवहार में जीने के लिए जो अनुशासन जरूरी, उसको यम और नियम बताया गया. फिर आसन, प्राणायाम, मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब लोग जानते ही हैं. फिर 5वां स्तंभ दिया प्रत्याहार, माने इस दुनिया से मन को छुड़ाकर अपने अंदर बैठने का जो एक नियम है, उसको प्रत्याहार कहा. ऐसे 8 अंग दिए हैं. उसमें अगर आज का हम रेफरेंस लें, आप योग को सिर्फ योगासन नहीं मानिएगा. योग में ये सबके सब 8 के 8 अंग अपने आप ही शामिल हैं. थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज, थोड़ा सा अपने आप को शुद्ध रखने के लिए डिसिप्लिन, थोड़ा सा व्यवहार में जीते जीते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका डिसिप्लिन. ये करते करते इसी जीवन को सुंदर बना के जी लेना, उसको योग कहा हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में. सो मैं इसमें ये रेफरेंस दूंगा कि आज की जो सिचुएशन है ना, आज की उस सिचुएशन में भी ये जो साइकोसोमैटिक एंगल है, उसको आप नजरअंदाज नहीं करिएगा माय डियर. अगर आपका मनस्थिति सुंदर है, स्ट्रॉन्ग विल है, तो आप इस कोविड सिचुएशन में भी अपने आप को बचा के रख सकेंगे. ऐसा खेल है ये. आप जिसको कोमॉर्बिडिटी कह रहे हैं, यानी क्या, जिनका शरीर ऑलरेडी कुछ गड़बड़े इकट्ठा करके जी रहा है. माने क्या, मन में गड़बड़े हुई है, शरीर में उसका मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी हो चुका है. उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोविड का. माने उसके अंदर का भी साइकोसोमैटिक जो एंगल है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए माय डियर. मैं कहता हूं अपने मन को प्रसन्न रखना,
प्राणायामों के द्वारा अपनी एनर्जीज को हाई बनाए रखना, तो इसी माहौल में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकोगे आप और अपनों को प्रोटेक्ट कर सकोगे। मैं ये कहता हूं, आप लोगों को अगर ये विषय और गहराई से समझना हो, एक्सप्लोर करना हो, तो प्लीज कुछ ऑर्गेनाइज करिएगा। आई वुड लव टू कम एंड एक्सप्लोर दिस सब्जेक्ट विथ यू। मेरा तो तड़प ही यह है कि एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एंड व्हाट फैंटास्टिक एबिलिटीज ईच वन ऑफ अस हैज। My next question, Rishi ji, आपकी ये बुक है Celebrating Life, which has been, it's a national bestseller and has been published by Penguin Random House. You've spoken about 6 steps to, at this point in time, especially because I have been in a position in which you have helped staff go through, a very rough patch. तो जब मैं मैसेज सोचती हूँ about celebrating life, I feel, how do I take this message back to families who have suffered or people who have lost their loved ones? तो उनके लिए ये significance of celebrating life, how will that come to life for them? मैं उसमें ना ये कहूंगा दीपा जी कि बहुत सेंसिटिव एमैल्गमेशन है प्रिवेंशन एंड क्योर का। Why I am saying this is, suppose किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ होने से पहले हम उनको तैयार कर लें, तो बहुत सारी गड़बड़ें प्रिवेंट कर सकेंगे। जैसे कहते हैं ना अपने शास्त्रों में कि वॉर टाइम एंड पीस टाइम, तो आर्मी बनती है पीस टाइम में और उसका यूटिलाइजेशन होता है वॉर टाइम में। वैसे ही जब इंटेंस सिचुएशंस चल रही हो, तब अपने आप को प्रिपेयर करने जाना उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा कि पहले से प्रिपरेशन हो, फिर इंटेंस सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में उस ऑलरेडी बने हुए, तैयार हुए माइंड का इस्तेमाल हो। तो उसमें मैं इसलिए प्रिवेंशन पर बहुत ज्यादा फोकस रखता हूं कि चलो कुछ गड़बड़ हुई है, अब जिनका कोई बहुत निकट का व्यक्ति गया है, तो उस समय तो उनको ज्ञान झाड़ने नहीं जा सकते माय डियर, उस समय तो उनको संभालना ही पड़ेगा कंपैशन से एंड उनके साथ होते हुए उनको कंफर्ट करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन जिनके जीवन में गड़बड़े अभी तक नहीं हुई, उनको पहले से तैयारी करना चाहिए। ये मेरी गुहार है सबको। Don't wait for something to go wrong in your life, my dears. Prepare yourself from the beginning. ये मेरा एक आग्रह रहता है। और अच्छा, मैं इसमें ये भी कहता हूं, आप ये सोचो, सिर्फ ये जो 2 सिद्धियों के बारे में मैंने बात की कि जब जो भाव जगाना चाहो जगा लो, ये कला सीख ली जाए। जब गड़बड़ वाला कोई भाव जगा, उसको त्यागने की कला सीख ली जाए। आप इमेजिन करिए, ये 2 स्किल्स अगर सीख लिए जाएं, बिलियंस ऑफ टाइम्स इन योर लाइफ दे विल बी यूजफुल फॉर यू। बिलियंस। किसी के साथ बात करते करते, कोई काम करते करते झगड़े जैसा एक आक्रोश जग रहा है मन में, इंटेंस भाव जग रहा है, उसी क्षण आप अगर वो ड्रॉप करने की कला सीख जाओ, उसका इस्तेमाल कर लो, उस मोमेंट के बाद जो भी आगे गड़बड़ें हो सकती थी, सब की सब उसी मोमेंट में प्रिवेंट हो जाएंगी। अच्छा, किसी दिन बहुत आक्रोश हो रहा है, मन में कुछ गड़बड़ हो रही है, आप आनंद जगाना सीख जाओ, तो उस गड़बड़ वाले भाव में रहते हुए आप जो एक्शंस करते, विचार करते, शब्द बोलते, वो सब के सब गड़बड़ों में से निकलते हैं तो ज्यादा गड़बड़ें पैदा करते हैं। जैसे ही आनंद जगा, वो सब की सब गड़बड़ें वहीं पर प्रिवेंट हो गई माय डियर। इट इज लाइक अवॉइडिंग एन एक्सीडेंट। इमेजिन करो एक्सीडेंट हो गया तो कितनी गड़बड़ करेगा। आपने एक्सीडेंट्स अवॉइड किए तो उसके बाद होने वाली सभी गड़बड़ें वहीं पर खत्म ही हो गई। ऐसे ये कार्मिक एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का टेक्नोलॉजी है माय डियर्स। आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। इसको लाइटली नहीं लीजिएगा प्लीज अपने अपने जीवन में। I really sincerely hope it is reaching your heart.
कार्मिक एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का टेक्नोलॉजी है ये। इसको प्लीज सीखिएगा अपने जीवन में, और उसमें अगर मैं कहीं भी आपके काम आ सकूं, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। मेरे जीवन का ही पर्पस ये है कि सबको अपना अपना सिद्धियों का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए और उसको यूटिलाइज करने की स्किल मिल जाए। अच्छा, हम लोग इन द मंथ ऑफ अगस्त, एक बार ये कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद 14 से 21 अगस्त हम लेह लद्दाख का टूर करने वाले हैं। हिमालय की गोद में बैठ के मेडिटेशन भी सीखेंगे, और ये जो इनर स्ट्रेंथ्स का एक्सप्लोरेशन है, स्व अध्याय है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे वहां बैठ के। I am going to be there with a group of about 150 people. If you wish to come with me, please come. Let's explore infinity together. अगर आपका मन करे आने का, तो ये एक नंबर दे रहा हूं, आप उसके ऊपर एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा. They will give you all the details how to be there. 8866-203-103. 8866-203-103. ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना दीपा जी, इसको थोड़ा सा गहराई से अपने अंदर उतारने के लिए समय चाहिए होता है. ये अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये सचमुच अच्छा सा ट्रेलर दिखा रहा हूं, इंट्रोडक्शन कर रहा हूं. वहां बैठ के मूवी देखेंगे साथ में. So, आपको सही लगता है थोड़ा सा, can we see a bit more of trailer and do some meditation right now? Oh, that will be fantastic. I would love to guide a small meditation. आप एक काम करें, मेडिटेशन का एक बेसिक समझ लीजिए. मेडिटेशन में कहीं भी हमें कंसंट्रेशन नहीं करना है, ठीक है. हम जितना ज्यादा हो सके शरीर को और मन को रिलैक्स करते जाएंगे, और फिर एक छोटा सा गाइडेड प्रोसेस है, वो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, आप उसको फॉलो करते रहें. तो सबसे पहले मैं कहूंगा, शरीर को एब्सोल्युटली कंफर्टेबल बना के बैठिए. लेट द बॉडी बी एज कंफर्टेबल एज इट कैन बी. आंखें बंद कर लें. If there is any stiffness in any part of your body, you can move that part and release the stiffness. Massage that part and release the stiffness. And sit as comfortably as you can be. शरीर को कंफर्टेबल बिठा दिया, तो अब हम मन की तरफ चलते हैं. इस मोमेंट के पहले जो कुछ भी हुआ, वो सब पास्ट में चला गया. जैसे एक कहानी हो गया, एक स्टोरी जैसा. भूतकाल की किसी भी इवेंट का अगर कोई असर अभी भी मन पर रहा हुआ दिखे, तो लंबी गहरी सांसें लेते रहना, और बाहर जाने वाली श्वास के साथ पास्ट के उस इफेक्ट को मन से त्यागते जाना. द नेचर हैज ऑलरेडी गिवन अस दिस, आई कॉल इट रिलीज सिस्टम. डिलीट बटन है ये अपना. द आउटगोइंग ब्रेथ. तो लंबी गहरी भरपूर सांसें चालू रखें, और बाहर जाने वाली श्वास के साथ पास्ट के इन्फ्लुएंस को मन से छोड़ते जाना, त्यागते जाना. जीवन का एक सत्य ये है, रहस्य ये है, द इनकमिंग ब्रेथ प्रोवाइड्स प्राण, एनर्जी टू द बॉडी.
And the outgoing breath provides release of negative emotions as well as physical impurities. अंदर आने वाली श्वास शरीर को प्राण देती है, जिससे ये शरीर चलता है। बाहर जाने वाली श्वास शरीर से अशुद्धियों को और मन से नकारात्मक भावों को बाहर छोड़ती है। इसीलिए आप देखें, कुदरत का दिया हुआ ये फैंटास्टिक रिलीज सिस्टम कितना इफेक्टिवली काम करता है। जैसे ही आप गुस्सा करोगे, श्वास फास्ट एंड शॉर्ट होती जाएगी। उस रिदम के द्वारा गुस्सा रिलीज हो जाता है मन से। अगर आप निराश होने लगो, डिप्रेस्ड होने लगो, तो श्वास जैसे एक साय के रूप में, निश्वास के रूप में, जैसे ऐसे अशुद्धियों को छोड़ती है बाहर। आपके मन में अगर डर का, भय का या चिंता का भाव जगे, तो श्वास में भी एक फ्लटर आता है, एक कंपन आता है। इट्स लाइक ऐसा एक कंपन का भाव जगता है श्वास में। लेकिन श्वास के उस रिदम से डर, चिंता, असुरक्षितता अपने आप ही श्वास के द्वारा निकल जाएगी। ऐसा अद्भुत सिस्टम बनाने वाले ने ऑलरेडी हर एक के पास दिया हुआ है। मन और श्वास के उस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए आज एक सुंदर प्रक्रिया करेंगे। भूतकाल की यात्रा पर चलेंगे और जहां जहां इम्प्योरिटीज मन में इकट्ठा हुई होंगी किसी घटना की वजह से, उसको अपनी अवेयरनेस में लाते हुए बाहर जाने वाली श्वास के साथ त्यागते जाएंगे। We will take our mind into the journey of the past, and whenever and wherever some event happened, somebody's behavior caused some negative emotion in your consciousness, revisiting those moments, we will keep on dropping the negative emotions with the outgoing breath. It's a very scientific, technical process of releasing, deleting, becoming free. So continue to take long, deep, full breaths and continue to take your mind into the journey of the past. लंबी भरपूर सांसें लेते रहना और भूतकाल की यात्रा पर मन को ले जाते हुए ऐसी कोई भी घटना याद आए जिसकी वजह से नकारात्मक भाव, नेगेटिव इमोशंस मन में रह गए हों, तो उन अप्रसन्नताओं को मन से बाहर जाने वाली श्वास के साथ त्यागते जाना। चालू रखें।
लंबी भरपूर सांसें लेते रहिएगा। चाहें तो अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को याद कर लें। If you wish, you can bring people whom you are associated with to your awareness, one after the other. और जिनके साथ अगर कोई नेगेटिव इमोशन जुड़ा हो तो मुस्कुराते हुए उस नेगेटिव इमोशन को त्यागते जाना। ये याद रखें, अपने मन को प्रसन्न रखने की, पवित्र रखने की जिम्मेदारी अपनी खुद की ही है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये रिलीज कर रहे हैं हम। कौन सी घटना में कौन सही था, कौन गलत था, इस जजमेंट में हमें कोई रस नहीं है अभी। हमें रस है गड़बड़ों को त्याग कर मुक्त होने में, और उसके लिए आउटगोइंग ब्रेथ का इस्तेमाल करने में। Who was right and who was wrong in whichever event of your life, it doesn't matter now. Right now we are not interested in that judgment. Courageously and committedly take your attention to different events, different people from your life, and drop the unpleasant, negative, restricting emotions, judgments, perspectives, and be free. अगर ऐसी कोई घटना याद आए जिसमें तुमसे कोई गलती हुई हो और उस गलती की वजह से गिल्ट रह गया हो मन में, आत्मग्लानि रह गई हो, अपने आप को दोष दे रहे हो, मैं कहता हूं उसको भी त्याग कर फ्री हो जाना। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है माय डियर्स। अपने आप को कोसने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब तक गिल्ट मन में रहता है तुम्हें जीवन का उत्सव नहीं बनाने देगा वो। Till the time your mind catches on to regrets and guilts, it does not let you celebrate life. I'm saying you realized your mistake is good enough. No need to blame yourself. Continue to take long, deep, full breaths. And continue to let go of unnecessary, negative, restricting emotions.
अपने डिजायर्स को और वरीज को भी देख लीजिएगा। जितने डिजायर्स ज्यादा, अनफुलफिल्ड डिजायर्स की वजह से उतना फ्रस्ट्रेशन ज्यादा। तुम्हारा जीवन इन बाहर की उपलब्धियों पर डिपेंडेंट है ही नहीं माय डियर्स। अंदर तृप्ति का भाव, सेटिस्फैक्शन का भाव, समाधान का भाव, संतोष का भाव बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं कहता हूं ड्रॉप अननेसेसरी डिजायर्स। इसको एम्बिशन कह के हम जस्टिफाई करते रहते हैं, लेकिन है तो लोभ का ही खेल। ये दिल मांगे मोर, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अतृप्ति में से पैदा होता है ये लोभ, और ज्यादा बड़ी अतृप्ति को पैदा करता है माय डियर्स। मुस्कुराते मुस्कुराते इन अननेसेसरी डिजायर्स को भी त्याग कर तृप्त हो जाइए। कुदरत ने भरपूर दिया है, उसका आनंद लेते हैं। अगर सटल लेवल पर देखोगे तो हर डिजायर तुम्हें भिखारी बना रहा है। जितना बड़ा डिजायर उतना बड़ा भिखारीपन। जस्ट लाफ एट इट, स्माइल एट इट, and drop the desires. Be complete and full. कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए वो ही शाहनशाह। जिनके डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स कम होते गए, वही राजाओं के राजा बनते गए हैं। लंबी भरपूर सांसें और इन अशुद्धियों को त्यागता हुआ मन ना हमें किसी को ब्लेम करने में रस है, ना अपने आप को ब्लेम करने में रस। ब्लेम्स को त्याग देना। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल वैसे भी ले ही रहा होगा। उनको ब्लेम करके अपने मन को अशुद्ध नहीं कर लेना। भगवान बुद्ध कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू एंगर अबाउट समबडी is like holding a red hot coal in your hand, waiting to throw it at someone. But while you are waiting, who is getting burnt, my dears? क्रोध को भी त्याग दें, लोभ को भी त्याग दें, असुरक्षितताओं को भी त्याग दें, इनसिक्योरिटीज को छोड़कर तृप्त, प्रसन्न, मुक्त हो जाएं। कभी कभी अपना अहंकार कहता है कि इतनी आसानी से अगर गड़बड़ों को त्याग दूंगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैं ही गलत था।
मैं कहता हूं इस बेवकूफ अहंकार में अभी हमें कोई रस नहीं। प्रसन्न चित्त, धीरे से अपने मन को वापिस वर्तमान में ले आना। ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लेना। स्ट्रेटन अप योर बैक a little bit and then bring your attention to the top of your head. सिर की चोटी पर अपना ध्यान ले आना। अपने शरीर में 7 चक्र बताए हैं, उसमें सबसे ऊपर का चक्र सहस्रार चक्र सिर की चोटी पर स्थित है। छोटे बच्चों का अगर आप सिर की चोटी का भाग स्पर्श करो तो हल्का सा सॉफ्ट होता है वो। नए जन्मे हुए बच्चे का सहस्रार अभी भी खुला हुआ होता है, फिर धीरे धीरे करते करते सॉलिड बनता जाता है। उस सहस्रार चक्र पर अपना ध्यान ले आओ। वहां आनंद का स्थान है। और फिर एक कल्पना करो, इमेजिनेशन करो, विजुअलाइज करो कि जैसे आप एक आनंदमय फव्वारा हो और आपकी सिर की चोटी से उस ओपनिंग से निकलता हुआ ये आनंदमय फव्वारा आपके आसपास के पूरे वातावरण को नहला रहा है। इमेजिन दिस, विजुअलाइज दिस, अभी हो ही रहा है, ये महसूस करिए। लंबी भरपूर सांसें, सिर की चोटी पर ध्यान और सिर की चोटी से निकलते हुए आशीर्वाद के, प्रेम के, आनंद के फव्वारे में पूरे विश्व को नहलाइए माय डियर्स। अपने छोटेपन को, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को बीच में नहीं आने देना। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला ईगो कहता है मैं कैसे कर सकता हूं ये। मैं कहता हूं इस छोटेपन को त्याग कर पूरे विश्व के लिए आनंद का स्रोत बनिए। You be the source of joy for the whole creation. Shower your love, shower your blessings, shower your joy on the whole existence around you. You are the fountain. You are the source. मैं कहता हूं अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को फिर से याद करो और उन्हें भी इस आशीर्वाद के, आनंद के, प्रेम के फव्वारे में नहलाओ। फैमिली मेंबर्स में एक एक व्यक्ति को अपने अवेयरनेस में ले आना एंड शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन ईच वन ऑफ देम। फ्रेंड्स को, नौकरी या बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को, कोई दुश्मन लग रहा हो तो उनको भी ब्रिंग देम टू योर अवेयरनेस एंड शावर योर ब्लेसिंग्स, शावर योर लव coming out of the top of your head. जैसे जैसे आप पूरी सृष्टि को नहला रहे हैं आनंद में, आप भी उसी फव्वारे में सराबोर होते जा रहे हैं। You are also getting drenched in this shower of bliss coming out of the top of your head.
और फिर मुस्कुराते मुस्कुराते मन करे तो थोड़ा सा और मुस्कुराते, सचमुच बिना वजह थोड़ा सा और मुस्कुराते। आनंदमय मन के साथ जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। Whenever you feel like it, there is no hurry at all. Take your time. कैसा लगा सबको? अच्छा लगा हो तो मुझे थम्स अप दे देना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं कहता हूं दिन में 2 बार, एक बार सुबह उठ के और दूसरी बार रात को सोने से पहले पूरा अपना मन छान मारो। कहीं भी कोई नेगेटिव इमोशन बचा हो तो बाहर जाने वाली श्वास के साथ त्याग दो, फिर आनंदमय फव्वारा बनो और पूरे विश्व को नहलाओ। You be the source of bliss for the whole existence and see the magic happening in your life. Deepa ji? Last request. Oh my. Meditation seems incomplete without music, और साधना सत्संग के बिना थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो few lines from you, ऋषि जी, will close. एक बड़ा सुंदर भजन है, बहुत डीप मीनिंग है उसका। आई एम श्योर स्पिरिचुअली जो इवॉल्व सोल्स हैं उनको कभी न कभी ये अनुभव हुआ ही होगा। आई बिलीव कुदरत ने जिस तरह से मनुष्य का मन बनाया है, हाईएस्ट को जान लेने की क्षमता हर एक के अंदर है ही। उसी बिलीफ के साथ एक बड़ा सुंदर भजन कर रहा हूं, एक एक शब्द सुनने जैसा है। मैं हूँ मंजिल, मैं हूँ सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। हो मैं ही मुसाफिर हूँ। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। हो मैं ही मुसाफिर हूँ। मैं हूँ राधा, मैं हूँ यशोदा, मैं ही
कृष्ण कन्हैया। मैं हूँ भगत, मैं ही भगवन, मुझ में ही सारा, मुझ में ही सारा। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। मंदिर में हूँ, मूरत भी हूँ, मैं ही स्वयं पुजारी। रूप भी हूँ, अरूप भी मैं ही, काल का मैं अधिकारी, काल का मैं अधिकारी। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। गुरु का गुरु हूँ, चेले का चेला, ज्ञानमय अज्ञेया। तन की साज हूँ, मन का मौज भी, आत्मरूप निर्दोषी, आत्मरूप मदहोशी। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। प्रेम प्रेयसी प्रीतम मैं हूँ, तुझ में मैं ही समाया। प्रेम प्रेयसी प्रीतम मैं हूँ, तुझ में मैं ही समाया। मुझ में तुझको ही पाया, मुझ में तुझको ही पाया। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। May I invite our Senior Vice President Engineering to share vote of thanks for Rishiji. It's been such a bliss. Your presence and your guidance has been. मैं मेरे विस्तारा के एंड टाटा ग्रुप के फैमिली मेंबर्स को ये कहूंगा, इस दुनिया का जो रोल है तुम्हारा,
किसी का माँ का रोल, किसी का पिता का रोल, किसी का बिजनेसमैन का रोल, किसी का टेक्नीशियन का रोल, उन सभी रोल्स को सुंदरता से निभाने के लिए जो जरूरी है वो सब प्रयत्न करते रहें, लेकिन साथ साथ में एज ए सोल, एज एक जीवात्मा का जो तुम्हारा रोल है ना, वो क्या रोल है, तो मैं ये कहता हूं इनर ब्यूटिफिकेशन का जो तुम्हारा रोल है उसको भी पूरी तरह निभाने के लिए एक थोड़ा सा प्रयत्न रेगुलर बेसिस पे चलते रहना चाहिए माय डियर्स. You are flying people high in the sky. I want each one of you to experience that spiritual height also. और उसके अंदर अगर मैं कहीं भी तुम्हारे काम आ सकूं, I'll be the happiest. हमारे पास इतना सुंदर करिकुलम है. मैं ये कहता हूं कि जैसे फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में कोई ग्रेजुएशन करना चाहे तो ग्रेजुएशन कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जाना चाहे तो वो अनुभव कर सकता है, पीएचडी करना चाहे तो वो भी अवेलेबल है. एग्जैक्टली लाइक दैट. ये जो इनर ब्यूटिफिकेशन का, अंदर की सिद्धियों को उजागर करने का जो सब्जेक्ट है, उसमें भी अलग अलग लेवल्स का करिकुलम अवेलेबल है माय डियर्स. आई एम सेइंग, अगर आपकी घंटी बजी है, आपके हार्ट के साथ ये सब्जेक्ट रेजोनेट करता है, तो उसको छोड़िए नहीं, पीछे लगिए उसके पीछे. एंड इफ यू विश टू कम, प्लीज लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर इन ले. 14th to 21st of August, 8866203103. इसको प्लीज मार्केटिंग की तरह नहीं लीजिएगा माय डियर. एक हृदय से निकली हुई आवाज है, इसलिए मैंने याद दिलाया फिर से एक बार. यस. Thank you, Rishi ji. Thanks for such a wonderful, inspirational, enlightening session for all of us. And I am definitely hopeful that a lot of people, those who have seen this trailer, they'll definitely go for the movie also. As you said, that people doing from the graduation to the post-graduations to the PhD. And a lot of people who are in this session, and we've been listening carefully to all your siddhis and gyans and dasans at the different level, and the karma yogas to dharma yoga and the chakras is definitely going to bring the inner beautiness and the inner intelligence from all of them. And thank you for such a wonderful session. And we all from Vistara family, thank you very much for such a session. Pranam. Lots of love and pranams to everybody.